Hello, welcome to my channel Apastrophysics. It is the third lesson of current electricity and it is a very important one. There are some important concepts will be discussed here. Number one, mechanism of electric current flow in a conductor, drift velocity, relaxation time, mobility of the charge carrier, relation between current and drift velocity, and derivation of the Ohm's law. First of all, mechanism of flow of electric charge in a metallic conductor. Metals have a large number of about 10 to the power 28 electrons per meter cube, free electrons. And these free electrons are current carriers in the metal or in solid conductors. In the absence of any electric field, these electrons are in a state of continuous random motion due to thermal energy. जो electrons, free electrons, ये चुपचाप बैठे नहीं रहते हैं, they are moving randomly due to their thermal energy. That means the velocity is a thermal velocity and thermal velocity is always random one. However, these velocities in the order of the 10 to the 5 meter per second are distributed randomly in all directions. On the average, the number of electrons traveling in any direction will be equal to number of electrons traveling in the opposite directions. कहीं भी कोई random velocity की बात आता है, so it is random means there is no particular direction. That means directions of the all particles are arbitrary and they are moving within a range of the velocities. जैसे random velocity एक साथ में बहुत सारे particles के बाद सोचा जाए तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट जितना जा रहा है, राइट टू लेफ्ट इतना ही जा रहा है. दैट मीन्स एक इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में आपको एक एक पेयर मिल ही जाएगा इन द रैंडम वेलोसिटीज. एंड लेट अस सपोज u1 vector, u2 vector, and in this way un are the random velocities of n free electrons in the conductor. Then their average velocity will be 0. Always the average velocity vector sum of all random velocity divided by number of velocities, that means number of electrons here, that is always will be 0. It is one fact. The random average velocity of the random velocity is always 0. It is one fact. It will be used later on. Thus, there is no net flow of charge in any direction. There is no electric current due to this thermal motion. मतलब क्या हुआ ना, एक कंडक्टर हम लोग ले लें, जब तक वहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लाई नहीं किया गया है, all free electrons they are moving randomly, but this type of motion they cannot constitute any electric current, because if you take any cross section at any point, number of free electrons they are passing from left to right and right to left, these will be equal. Therefore, their net result is 0, no current we get. Alternately, we can say the random average velocity of the random velocities are always 0. But in the presence of an external electric field, each electron experiences a force that is minus E vector in opposite direction of the field E and undergoes an acceleration A given by this one. तो ये जो force की बात हम कर रहा हूँ, these force basically we are considering for the free electrons. Free electron छोड़ के भी बहुत सारे electrons होता है, bound electrons. They also experience force, but they cannot be accelerated because they are fixed at their own positions. तो उसका एक force सबको मिलेगा. Our electrons, since it is negatively charged particles, therefore they will experience a force that is opposite to the direction of the E. Now, if there is any force and they are capable to move, therefore they will experience an acceleration, and that acceleration really force divided by mass. In this case, force is the minus E vector divided by mass. M is the mass of the electrons, and it is the acceleration explained by each free electrons. For each and every electrons, these are constant. E same for the all electrons, and E by m, that is also constant. As the electrons accelerate, they frequently collide with the positive metal ions or other electrons of the metal. Positive metal ions means when electrons get freed from their atoms, obviously the remaining part is one positive ions. And these positive metal ions, they cannot move their own place, but they are vibrating, and their vibrational kinetic energy increases when temperature increases. And when these electrons accelerate in a particular direction that is opposite to the electric field,
obviously they will collide frequently with the positive metal ions which are vibrating at their own places, and also the other electrons. Between two successive collision, an electron gains a velocity component in addition to its random velocity. Initially, each and every electron has some random velocity, and after that, the electrons also gain a velocity component in a direction opposite to the e. That means along the direction of the acceleration. However, the gain in velocity lasts for a short time and it lost in the next collision. तो ये जो velocity gain हुआ है साथ साथ next after some very small interval of time they will collide with other uh, ions or electrons, and they lost this gain velocity. And this type of collision obviously it is the inelastic collision, because during each and every collision the electron lost the energies. And if you should know these collisions causes the opposition, that is resistance. और जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो हम देखते हैं कोई भी कंडक्टर that temperature increases because heat energy produced, and in during this collision when loss of kinetic energy that converted to heat energy. Therefore these type of collision are not elastic collision, inelastic collision. At each collision, the electron starts a phase with random thermal velocity. And if we just think about this, अगर visualize करने चाहते हैं, and it is one setup, it is, let us suppose, one part of a copper wire, and it is connected by an external source, and it is the positive terminal and it is the negative terminal. Therefore, when current passes from the positive to negative terminal, electric field direction, that is the positive to negative. But electrons, that is electronic current, that is opposite to the electric field. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घुस रहा है, फिर इसे कोलिजन होते हुए आगे बढ़ते जा रहा है. एक टाइप का जो है, इसमें दो कोलिजन का बीच में कुछ टाइम इंटरवल मिलता है, तो दैट इज नॉट द रिलैक्सेशन टाइम. दैट मीन्स दे आर मूविंग from in this figure diagram right to left opposite to the direction of the electric field by colliding with each other. This type of movement is not the drifting, but the drift कर रहे हैं electrons, किधर ना from negative to positive जा रहा है. इलेक्ट्रॉन्स हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी तो है ही उसके साथ. तो बोला सर सब तो इधर ही एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ऑल दीज आर नॉट मूविंग, चाहे एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग एग्जैक्टली इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. बोला ऐसा नहीं हो सकता है. क्यों ना, ये एक्सेलरेशन है opposite to the direction of the electric field, but at the same moment it has some initial velocity, and that is random velocity. Maybe initial velocity opposite in direction, maybe in this direction, and it gain a velocity that is along this, but as a whole the total velocity is not opposite to the directions of the electric field. तो एक component इधर हमको मिलता है, कोई भी जो उल्टा साइड में जा रहा था उसको तो पहले रिटार्डेशन होगा due to this electric field. So somehow one electron when enter into the right side and it is leave the conductor at the left side, then it has to suffer several number of collisions. If an electron having random thermal velocity u1 accelerate for a time tau1 before it suffer the next collision, then it will attain a velocity. That velocity is this vector form में लिखा जा रहा है इसमें, v1 vector is equal to u1 vector plus a into tau1. Similarly, the velocities of the other electrons will be velocities of the other electrons. If we consider n number of electrons, then for the second electron, that is v2 at the same moment, that is u2 plus a tau 2, v3 equal to u3 plus a tau 3. Similarly, vn is equal to un plus a tau n. तो ये जो n number of electrons का हम लोग वेलोसिटी का एवरेज निकालने जा रहा हूँ, it is not a velocity of a single average velocity of a single electron. We are considering n number of electrons and they are moving or drifting under the influence of external electric field given by a battery or a DC source. वो जो मूवमेंट हो रहा है एक साथ में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबका वेलोसिटी का एवरेज हम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, एट दैट मोमेंट व्हाट आर द डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय उसका सम लिया जाए, वेक्टर सम एंड डिवाइड बाय n. So by putting the value of the v1, v2, etc., and vn, so v1 is the u1 plus a tau1, v2 is the u2 plus a tau2, in this way plus un plus a tau n. Now if we collect these u1 plus u2 plus u3 plus un, इसे इकट्ठा हम करते हैं डिवाइड बाय n, दो पार्ट में बांट देते हैं. ये it is equal for the all electrons, same for the all electrons, because all electrons have same mass and same charge and they are accelerated by the same electric field
तो ये सबके लिए सेम है, तो एक कॉमन ले लिए, टाउ 1 टाउ 2, दीज आर द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कोलिजन। एंड इसमें जो कोलिजन जो टाइम है सबके लिए बराबर नहीं होता है, कभी थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वो भी टाइम में बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन उसका भी एक एवरेज हम लोग निकालेंगे तब। So ultimately, we already studied that this part is zero, that is average of the thermal velocities. The sum of all these are zero. Thermal velocities we are considering here the initial velocities. So ultimately, the Vd जिसको बता रहा हूँ, d for the drift velocity, that is average velocity, that will be a into tau. Where tau, ये टाउ लिख रहा हूँ, किसका बदलना है, इसका बदलना, टाउ लिख रहा हूँ, where tau is the tau 1 plus tau 2 plus tau 3 or this plus tau 1 divided by n. This is the average time between successive collisions. One time interval between the two successive collision, that is not so important क्योंकि वो डिफरेंट होते रहेगा, लेकिन एक एवरेज कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलेंगे जो इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलैक्सेशन टाइम था उस कोलिजन के पहले, उसका सबको ऐड करके n से डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आता है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्स कर रहा है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जो टाइम इंटरवल है उसका एवरेज वैल्यू को हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। चाहे उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बताएंगे, टाउ से लिखा जाता है। ओपनली एवरेज वर्ड हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन व्हेन वी विल say relaxation time, you should understand it is average relaxation time. The average time that an electron spends between two collisions is called the relaxation time. Tau, its value is of the order of 10 to the power minus 14 second, very less. It is very small time interval between the two successive collision. So now we have one term average relaxation time. At the same time अभी जो discussion हम लोग हुआ है, that is about the drift velocity. Drift velocity Vd, d for drift of electrons, the average velocity with which free electrons get drifted in a metallic conductor under the influence of the electric field is called drift velocity. And if you asked what is the drift velocity, then you have to give this definition: the average velocity with which free electrons get drifted in a metallic conductor under the influence of electric field is called drift velocity. The drift velocity of free electrons is of the order of 10 to the minus 5 meter per second to 10 to the minus 4 meter per second. That is only a few meters in an hour. इसको थोड़ा बहुत हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल चुका हम लोग को, which is very important to us. This velocity, average velocity, is nothing but the drift velocity, and that is the Vd equal to a vector into tau. Tau is the average relaxation time or relaxation time. Then Vd is equal to, what is the value of the, for the electron it is minus e vector divided by m. Minus sign indicates the drift velocity of the free electrons, that is opposite to the direction of the e, because electrons are the negatively charged particles. And when we consider only the numerical value, then we can use this e into e divided by m divided by tau. It is for the electrons, but you may also use this formula for any charged particles which is drifting, and in such a case you have to take, in place of e you have to take the q. Now we want to talk something about this factor, the drift velocity, drifting of the electrons. And what is the meaning of the drifting? एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए, लेट अस सपोज एक स्टेशन में एक ट्रेन आई है, तो उसका वही लास्ट भी था, ऑल द पैसेंजर्स आर now get down from the train and they are moving and they try to move through the passage or over, flyover to get them outside of the station. स्टेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसका एक मूवमेंट थोड़ा सा देखोगे, ऐसे धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने लगता है। ऑल दीज आर फ्री टू मूव, लेकिन उसके कोई रास्ता नहीं खाली छोड़ा है, जैसे फ्री टू मूव सीधा चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बीच में कोई नहीं है। तो ये जैसे एक कोलिजन होते होते आगे बढ़ने लगता है, तो हम लोग उस टाइम तो लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इज ड्रिफ्टिंग ऑफ द पैसेंजर्स। सिमिलर कॉन्सेप्ट हियर ऑल्सो। Now electrons, when they are subjected to some electric field, free electrons, and they experience an acceleration, and due to this they now can move from lower potential to higher potential, that means opposite to the direction they lead. लेकिन मूव करने के लिए उसको खाली जगह कोई नहीं छोड़ा है, ऐसा नहीं धक्का धुक्की करके आगे बढ़ते जा रहा है, कुछ वेलोसिटी गेन किया, फिर लॉस किया, फिर गेन किया, फिर लॉस किया, कोलिजन होते होते आगे बढ़ते जा रहा है। दिस टाइप ऑफ जो मूवमेंट होता है वो तो ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट वर्ड डिफरेंट प्लेस में भी यूज किया जाता है, नॉट ओनली फॉर दिस चार्ज एरियाज। दूसरा बात ये होता है, जो इसमें हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी मिलता है, दैट इज वेरी लेस।
अगर हम 10 to the power 5 मीटर -5 मीटर पर सेकंड टू 10 to the -4 मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग मीटर में पर किलो आवर कन्वर्ट करें तो फ्यू मीटर्स मिलेगा। मान लीजिए हमें मिलेगा अबाउट 3.5 मीटर्स पर आवर, मतलब फ्यू मीटर्स, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर पर आवर 1 घंटा में जा रहा है। तो इसमें एक कंफ्यूजन कभी-कभी आता है हम लोग दिमाग में, जो हम कोई लंबा तार ले लिए, उसमें बल्ब लगा दिए हैं और घर में स्विच रखे हैं, फ्यू मीटर्स लेंथ ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर, जब स्विच ऑन करते हैं साथ-साथ बल्ब क्या होता है, ग्लो कर जाता है। तो हम लोग अगर सोचने लगे, जो इलेक्ट्रॉन्स जो स्विच में था वहाँ पे हम रोक के रखे थे, स्विच ऑन किए तो इलेक्ट्रॉन दौड़ के गया है और फिर बल्ब को जला कर फिर रिटर्न आ गया, तो ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रॉन स्विच के पास है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं बल्ब के पास, लेकिन उसके लिए फ्यू आवर्स टाइम चाहिए, 5 घंटा बाद वहाँ पहुँचा है। इसका मतलब है ना, सुबह में आप स्विच ऑन किए, शाम तक वो बल्ब जल ही जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, साथ-साथ जाता है। तो हम लोग अगर ये बात को समझने की कोशिश करें, जो डीप वेलोसिटी लेकर इलेक्ट्रॉन गया है, फिर बल्ब को जला कर फिर लौट के आ भी गया है, तो उस हिसाब से सोचने से तो 1 दिन टाइम लग जाएगा बल्ब जलने में ही, क्योंकि इतना दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा इतना वेलोसिटी से। एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो करंट का मैकेनिज्म होता है ऑलरेडी जो कनेक्टिंग वायर है, चाहे बल्ब के अंदर में जो फिलामेंट है, ऑल कोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, वो रैंडमली इधर-उधर मूव कर रहा है। तो जब रैंडम मोशन है तो उसका नेट रिजल्ट 0 होता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तभी होगा। तो कैसे होगा? नाउ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं, वी अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस एंड uh, when we apply some potential difference, an electric field automatically develop। इसमें एक कमाल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड साथ-साथ ट्रांसमिट हो जाता है। बोला जाता है इन द स्पीड ऑफ लाइट, अगर मान लीजिए साथ-साथ ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ सेटल हो गया है, डेवलप्ड हो गया, साथ-साथ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगा है। जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वहाँ पर था, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं था, रैंडम मोशन में था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगता है, एंड इट इज द कॉजेस बिहाइंड द करंट एंड इट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ड्यूब वेलोसिटी बहुत ही कम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर वहाँ अगर जाए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, जाएगा कभी ना कभी, लेकिन उसका जरूरत ही नहीं है। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली जब हम स्विच ऑन करते हैं, वी अप्लाई सम potential difference which causes the electric field within the conductor, and these electric field causes the acceleration opposite in direction of the electric field, acceleration of the electrons, and due to this there will be an electric current। अब स्विच ऑफ कीजिए तो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, करंट जा रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा नहीं है थोड़ा दिन करंट जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएगा। ये जो होल प्रोसेस में ना तो इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन होता है, ना तो डिस्ट्रक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। आप दूसरा एग्जांपल भी हम दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए एक वाटर टैंक है, उसका 1 किलोमीटर एक पाइप है, उसके बाद आपका घर में पानी आ रहा है, ऑलरेडी पूरा पाइप जो है ना वाटर से भरा हुआ है। अब वहाँ जो वाटर टैंक में जो भाल्व खुलते हैं ना, साथ साथ आपका घर में वाटर सप्लाई होने लगता है, गिरने लगता है। इसका मतलब वो नहीं है जो वाटर टैंक का ही जो वाटर आपका घर में गिरने लगता है, क्योंकि उसका आने में टाइम लगेगा। ऑलरेडी जो भरा हुआ था वो पानी आपका घर में गिर रहा है। इसमें क्या हुआ, तब ना एक प्रेशर का ट्रांसमिट हुआ है, जब भाल्व खोल दिया गया तुरंत एक प्रेशर difference develop हुआ है, pressure transmit हो गया, and due to this water start to flow। Exactly similar mechanism here, already all the conductors they possess free electrons, they are moving randomly, but when you apply some electric field by applying some potential difference, they are now start to move in a particular direction, and we get an electric current। It is the mechanism of electric current। Now another term is the mobility of charge carriers, and it is written by the mu से हम लोग लिखते हैं। Mobility of charge carrier responsible for current is defined as the magnitude of drift velocity of charge per unit electric field applied। मतलब यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ, वन पॉजिटिव आयंस अनदर नेगेटिव आयंस होता है। 2-3 इलेक्ट्रोलाइट एक साथ मिला दीजिए तो बहुत टाइप का पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस उसमें आ गया है। तो उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो करंट स्टार्ट होता है। लेकिन जितना चार्ज पार्टिकल है, सबका पास चार्ज सेम नहीं होता है, सबका मास भी सेम नहीं होता है। तो चार्ज और मास का रेशियो भी सबका सेम नहीं होता है। तो सबका ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, लेकिन इन सच ए केस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल नॉट इक्वल टू ईच अदर। सबका ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं होता है। यहाँ ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन की बात है, इसलिए कंपैरिजन नहीं है मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन इन फ्यूचर मिलेगा। जब इलेक्ट्रोलाइट पढ़ोगे मिलेगा। सेमीकंडक्टर हम लोग 2 टाइप का चार्ज के बताएंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स अनदर पॉजिटिव होल्स। तो एक मोबिलिटी होता है, मतलब जो है एक ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जिसका वेलोसिटी ज्यादा गेन करते हैं बाय
पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका हम बोलेंगे मोबिलिटी अच्छा है। जैसे मान लीजिए वो स्टेशन का जो एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, जो पैसेंजर्स आर ड्रिफ्टिंग, उसमें देखो कोई बहुत ही पतला होता है, मोटा होता है, बच्चा होता है, सब एक ही जैसा वेलोसिटी से आगे नहीं बढ़ पाते, सबका एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होता है। जो मोटा है धीरे धीरे चल रहा है, मान लीजिए सपोज टू बी, तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही बात होता है, जिसका स्पेसिफिक चार्ज हम लोग बोलेंगे, चार्ज बाई मास, जिसका जितना ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी जितना कम होगा, मोबिलिटी कम हो जाएगा, देखा जाएगा। तो म्यू जो है, म्यू से लिखते हैं, इट इज नोन एज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। इन फ्यूचर डिफरेंट टॉपिक्स में इसका यूज ज्यादा होगा, यहाँ पर हम लोग इसका मेंशन करके रखते हैं, मोबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोबिलिटी। ऑब्वियसली यूनिट ऑफ द म्यू, मोबिलिटी कितना होगा ना, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम था, ऊपर में गया न्यूटन माइनस हो गया है, यार कूलम पाथ था, ऊपर में कूलम इनटू हो गया, चाहे वोल्ट में लिखोगे तो इतना आएगा, इट इज द यूनिट। अब इन जो अभी अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बारे में, जो मोबिलिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा, क्यों वी डी बाई ई, वी डी बाई वी डी का वैल्यू इतना था, तो डी बाई ई की थी तो कट गया, तो ई टाउ बाई एम। ई बाई एम देखिए, टाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ई बाई एम जिसका ज्यादा होगा मोबिलिटी उसका ज्यादा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम सबसे ज्यादा है, ई बाई एम जो सबसे ज्यादा है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ई बाई एम मतलब इसका इलेक्ट्रॉन मास सबसे कम है, लेकिन चार्ज उसका ई के बराबर है। अगर हाइड्रोजन हम लोग आयंस लेते हैं तो उसका मास बहुत ही ज्यादा है, उसका चार्ज भी ई है, तो उसका ये जो ई बाई एम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, जिसका ज्यादा होगा उसका मोबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका मोबिलिटी कम होगा। तो दिस वन, तो एक मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया हम लोग को। अभी हम लोग का वेरी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो चैप्टर के लिए जो मेन थीम है, जो डीप वेलोसिटी और करंट कैसे रिलेटेड है। तो डीप वेलोसिटी करंट कैसे रिलेटेड है, इसके लिए हम लोग एक डिराइव करेंगे एंड एक रिलेशनशिप मिलेगा, जो बार बार डिफरेंट टॉपिक्स में यूज होगा। ये रिलेशनशिप बहुत ही फंडामेंटल रिलेशनशिप है। लेट अस सपोज, इसके लिए हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ए conductor of length L and of uniform cross section A. The electric field E set up inside the conductor is given by E is equal to V by L. Under the influence of field E, the free electrons begin to drift in the opposite directions E vector with an average velocity Vd. मतलब जितना सारा बात हम लोग अभी पहले पढ़ चुका हूँ, इसमें हम उसी को कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे एक कंडक्टर है, इसका लेंथ हम लोग L लिए हैं, and V potential difference is applied with the help of this battery, and this side is the positive, it is the negative side. As a result of this potential difference, there is an electric field, and that is from positive to negative, and therefore the electrons start to drift from the negative terminal to positive terminal. ये हम लोग कंसिडर किए हैं। अभी इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रिक करंट दैट इज द नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट करंट डायरेक्शन हम इसी को ही बोलेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हियर। इसके साथ हम लोग डीप वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे। इसमें और एक चीज कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज द स्मॉल एन। व्हाट इज द स्मॉल एन? द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बोला जाता है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डिफरेंट मेटल में चाहे डिफरेंट कंडक्टर में डिफरेंट होगा। जैसे सिल्वर के लिए बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग अच्छा गुड कंडक्टर मानते हैं, बेस्ट कंडक्टर मानते हैं। दूसरा जिसका कम होगा तो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। और एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले ही पता है, ई है। अभी देखा जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू दैट इज स्मॉल एन इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अभी कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है ना, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एल, इट इज द लेंथ, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो इतना अगर वॉल्यूम होता है इनटू एन होता है, तो टोटल कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पोजेस्ड बाय दिस गिवन कंडक्टर, जो कंडक्टर को दिया गया है, जिसका लेंथ एल, जिसका ए क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन, तो उसमें इतना इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इतना इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास टोटल चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ each electron, that is ENAAL. It is the total amount of charge possessed by all free electrons in the given conductor. All the electrons which enter the conductor at the right end will pass through the conductor at the left end in time t. तो कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दैट इज L डिवाइडेड बाय VD। ये बात को थोड़ा समझा जाए। कारण का टाइम ऐसा है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लास्ट राइट में जो इलेक्ट्रॉन घुसा है वो लेफ्ट में निकल गया, तो उससे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, जितना सारा इलेक्ट्रॉन सब निकल गया। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन सब निकल के खाली हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलते जा रहा है इतने इलेक्ट्रॉन घुसते भी जा रहा है। हम लोग लास्ट वन जहाँ से राइट एंड में एक इलेक्ट्रॉन घुसा है, और वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएगा तो हम बोलेंगे उसका सामने जितना सारा इलेक्ट्रॉन था ऑल
आप जो है वो ट्रांसफर हो गया है और यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल के आ गया। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो कितना ऑन एन एवरेज टाइम लगेगा, दैट इज द लेंथ डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी एल डिवाइडेड बाय वी। नाउ व्हाट इज द करंट, द टोटल चार्ज डिवाइडेड टाइम टेकन। टोटल चार्ज उसमें कितना था ना, इतना चार्ज था, टाइम कितना लगा ना, एल डिवाइडेड वी। तो इसको डिवाइड करो तो एल तो कट गया, तो इट इज द फॉर्मूला एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत ही सिंपली आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। इसको डिराइव करने के लिए आता भी है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ लिख लिख कर करना होगा, इतने ही आप लिखोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रिलेशन बिटवीन दिस, इसमें देखो रीड वेलोसिटी ज्यादा होने से करंट ज्यादा होगा, डबल होने से डबल होगा, हाफ होने से हाफ होगा। तो इन दिस वे बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है। अभी तो 1 मार्क्स क्वेश्चन तो भ्रमार है, तो उसमें तो पूछता ही है। नाउ इसके साथ हम करंट डेंसिटी भी देख लेते हैं। करंट डेंसिटी क्या था, आई बाई ए था। तो आई बाई ए देखो, यहाँ पर कहीं वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आई करंट स्केलर, उसके ऊपर एरो नहीं दे सकते हैं, ये थोड़ा ख्याल रखिएगा, जहां तक एरो नहीं दे दीजिएगा। तो ये आई बाई ए, तो आई बाई ए कितना होगा, जे हुआ, तो एन ई इंटू वी डी, यहाँ पर डिवाइड कीजिए तो जे, अभी हम लोग यहाँ वेक्टर सिंबल दे सकता हूँ, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन दे रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इसलिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का डायरेक्शन उसको उल्टा होता है, इसलिए नेगेटिव साइन दिया गया। अभी ओम्स लॉ का डिराइव करेंगे। नाउ इट इज अनदर पार्ट ऑफ टॉपिक्स ओम्स डेरिवेशन ऑफ लॉ। हम पहले बताए, जितने इंपॉर्टेंट बात आज ही हो जाएगा इसमें। द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, when a potential difference V is applied across a conductor of length L, the drift velocity in terms of the V is given by Vd कितना हुआ, ये तो हम लोग निकल चुके हैं। E के वैल्यू कितना होता है, E होता है V by L, potential difference by length is the E, electric field। तो E tau divided by M, fall into this, if the area of cross section of the conductor A and the number of electrons free per unit volume is N, the current through the conductor, we know it from equation number 8. And now putting the value of the Vd, it is the value of the Vd, and E is the V by L, V is the potential difference, L is the length of the conductor, V by L. And from this we can write this one, if you make V is the subject, so V is equal to M L divided by N square tau into A into I. It is the expression. Now this term is constant when, now that is, this term is known as the R, and it will be called the resistance, where R is the AML divided by N square tau into A. That is a constant term. When it is constant, now for a given conductor, AM, E, L, N, A, all are constant. मतलब क्या हुआ, AM and E, it is always constant because these two are universal constant. कोई भी conductor ले लिया जाए, उसका mass of electron, charge of electron constant. For a given conductor, length constant. For a given conductor, area of cross section constant. And N, it is depends upon the material. अब conductor को दे दिया गया तो material तो अनचेंज चेंज नहीं होगा, N भी constant है। बाकी रह गया कौन टर्म ना, टाउ। The tau that depends on the temperature. If temperature constant, the tau, that means relaxation time is constant. That means this term is a constant. So therefore V by I is equal to R. Now it is constant. तो हम लोग कैसे बोलेंगे ना, for a given conductor at constant temperature, all these are constant. Therefore we can write V varies I. It is nothing but the Ohm's law. That means it is the proof of the Ohm's law. If you asked prove the Ohm's law, then you have to do in this way. It is another topics. How can you prove the? कल हम लोग जो इसके प्रीवियस क्लास में किए थे, ओहम्स लॉ पढ़े थे, उस टाइम बताए थे जो इट इज वन एक्सपेरिमेंटल लॉ, बट देयर इज ए लॉजिकल प्रूफ ऑफ इट। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से जो है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल से इसको हम लोग लॉजिकली प्रूफ किए हैं, जो भी वेरिएज आई होगा, कब होगा, फॉर ए गिवन कंडक्टर एंड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ अभी उस टाइम एक बात होता था, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे V इक्वल टू I into R, factors affecting the resistance are R is equal to AML divided by N square tau into A। जो फैक्टर्स R का अफेक्टिंग फैक्टर्स है वो कंडक्टेंस के लिए सेम है, तो हम लोग जो इसको R समझेंगे तो कंडक्टेंस के लिए भी साथ साथ समझ लेंगे। बात यही है, जो R जो फैक्टर इंक्रीज होने से R इंक्रीज होता है, कंडक्टेंस उसमें डिक्रीज होगा, उल्टा बात होगा। इसमें हम लोग क्या देख रहा हूँ ना, इसमें दैट नो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एम एंड ई, दीज टू आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये दोनों छोड़ दीजिए, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट, एल एन टाउ एंड ए। तो अगर ये फॉर्मूला आपके पास है तो आप आराम से बोल सकते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। लेंथ ज्यादा होने से आर ज्यादा होगा, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से आर कम होगा, ये भी हम देख चुके हैं। बाकी दोनों फैक्टर आज हमको क्लियरली समझ में आएगा
कल हम लोग पढ़े थे, एक तो n that depends upon the materials. For large number of n's, r will be less, and tau that depends upon the temperature. In this way, we can easily say what are the different factors which affect the resistance of a given conductor. Now, these are the different. At the same time, यहाँ पर r tau के साथ कैसे डिपेंडेंट है ना, that depends upon the tau depends on the temperature. Temperature increases, tau decreases, more frequently collision will taken place. As a result, r increases. Temperature बढ़ाने से metal conductor का r increase होता है, सबका नहीं. Factors affecting the resistivity. तो resistivity का फॉर्मूला आप ये लिखो, इसको भी लिखिए एक बार, तो दोनों कंपेयर कीजिएगा. तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी रो, दैट इज am डिवाइड n स्क्वायर टाउ. इसमें एक ओपनली स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, जब पूछा जाता है अगर लेंथ डबल किया तो रेजिस्टिविटी क्या होगा. बी केयरफुल अबाउट इट. रेजिस्टिविटी इट इज द कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर इट नॉट डिपेंड्स अपॉन r l और a. ये तीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ए रो इट इज कांस्टेंट वन. तो ये डिपेंड किसके ऊपर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा ही जाता है, भाई में पूछा जाता है, ऑलवेज पूछा जाता है, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है. नाउ इफ यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली से am and e always constant. It is constant for all types of materials, especially resistivity related to materials. So now it depends upon n and tau. There are two factors only. N is number of electrons, that depends upon the materials. For the silver, n is maximum or more, therefore rho will be less. साथ साथ conductivity बात किया जाए तो उल्टा बोलेंगे इसमें. तो ये हो गया. नाउ एन के ऊपर डिपेंडेंट है, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटता है, तो इतना नीचे घटता है तो रो बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. कंडक्टिविटी जस्ट उल्टा बताओगे. इसके बाद और एक रिलेशनशिप जो है, जो हम लोग का जे सिग्मा एंड ई, कल भी रिलेशनशिप हम लोग एस्टेब्लिश किए थे. आज हम दूसरा ढंग से देखेंगे. हम लोग क्या जानते हैं ना, वीडी जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, आई जानते हैं. इसमें इक्वेशन में हम लोग आई के इक्वेशन में वीडी के वैल्यू पुट कर दिया जाए तो कितना होगा ना, इतना होगा. वीडी के वैल्यू पुट कर दिया जाए तो हाँ, तो इसमें आई बाई ए को हम लोग क्या लिखते हैं ना, जे लिखते हैं. इसमें हम वेक्टर साइन नहीं दे सकता, लेकिन आई बाई ए जे में वेक्टर साइन जरूर दे सकता हूँ. माइनस एन इंटू वीडी. तो वीडी के वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दीजिए विद साइन. तो एन ई वीडी इतना हो गया तो प्लस हो गया. प्लस हो गया क्यों हो गया ना, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, लेकिन जेट वेलोसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है इसमें. तो फ्रॉम दिस इट इज नथिंग बट नाउ if it is the rho, that is resistivity, so inverse of resistivity, that is the conductivity. Now this term is the conductivity, or j factor is the 1 by rho. these two words देखिए, हम लोग यहाँ पर v equal to I into r, और हम लोग जब इसका टर्म में लिखते हैं, j का टर्म में लिखते हैं, j इक्वल टू एज सिग्मा इंटू e और j इक्वल टू 1 by rho इंटू e. तो ये कल भी हम लोग देख चुके थे, आज भी हम देख रहा हूँ. तो ये देखिए सिग्मा इंटू ये जे 1 by rho इंटू ये दोनों को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ. नाउ एक थोड़ा सा डिस्कस लास्ट करके हम वीडियो को खत्म करेंगे. कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. तो अभी इतना डिस्कशन के बाद हमको पता चला है रेजिस्टेंस क्यों है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, ओरिजिन क्या है. दैट इज नथिंग बट द कोलिजन. Collisions are the basic causes of resistances. When a potential difference is applied across a conductor, its free electrons get accelerated on their way. They frequently collide with the positive metal ions. That is, their motion is opposed, and this opposition to the flow of electrons is called resistance. Large number of collisions per second, smaller is the reaction time tau, and the larger will be the resistivity. तो रेजिस्टेंस ओरिजिन को डिपेंडेंट है. और ये जो हीटिंग इफेक्ट की बात हम लोग इन फ्यूचर पढ़ेंगे, तो हीटिंग इफेक्ट होता है. हम देखते हैं कहीं भी कोई कंडक्टर थ्रू करंट पास हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है. अल्टीमेटली उसका पीछे माइक्रोस्कोपिक क्या कहानी है ना, उसमें कोलिजन है. जब कोलिजन होता है तो उसका ऊपर. तो ये आज इतना ही है, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज कहा गया है. इसका क्लास नोट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिलेगा, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लाइक कीजिए टू गेट नेक्स्ट वीडियो. नाउ थैंक यू फॉर टुडे. अगर आप टाइम और मनी सेव करना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जितना है सबको लाइक कीजिए. अब कंटिन्यूसली वन आफ्टर अनदर आप देखते जाइए.